Thank God for a prophetic word. हमने जो वचन सुना उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। It's a very encouraging and prophetic word. बहुत ही हमें प्रोत्साहित करने वाला और एक भविष्य वक्ता के समान वचन हमने सुना। So, what we heard was about the peace of God. हमने परमेश्वर की शांति के बारे में सुना। And the peace of God, as we already heard in Romans chapter 1, Romans chapter 5 verse 1, it says that we are justified and we have got peace with God. हमने जैसे सुना वो रोमियो 5 का 1 में By the way, please excuse me, I have just taken my translator who's right now with me, so Vipul can translate the others. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। So brothers and sisters, actually peace is a quality or the nature of God. जो शांति है या मेल वो परमेश्वर का ही एक खूबी है। It says our God is a God of peace. हम पढ़ते हैं वचन में कि हमारा प्रभु शांति का परमेश्वर है। We find this term, the God of peace, mentioned in many places. हम जो ये वचन है शांति का परमेश्वर, ये हम कई वचनों में पवित्र वचन में हम देखते हैं। So our God is a God of peace. He's a God of love and he's a God of peace. परमेश्वर जो हमारा चलाने वाला है वो एक शांति का परमेश्वर है। So when we have God in our lives, then we will get that peace. जब परमेश्वर हमारे जीवन में हैं तो हम भी उसके भागी हो जाते हैं। It says Jesus said, "My peace I give to you." यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ। Yeah. So Jesus is the one who gives us his peace. यीशु मसीह है जो हमें अपना शांति देता है। In Romans 16:20, it says, रोमियो 16 के 20 में ऐसे कहा है, "The God of peace will soon crush Satan under your feet." Romans 16:20. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। We'll read one more verse where it's mentioned about God of peace. Hebrews 13:20. इब्रानियों 14 का 20वां वचन। Now the God of peace who brought up the dead, the God of peace, Hebrews 13:20. Now the God of peace who brought up from the dead the great shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord. इब्रानियों 13 का 20वां वचन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। The Bible says that the wicked have no peace. वचन में ऐसे कहा गया है जो दुष्ट लोग हैं उनको शांति में कोई भाग नहीं है। It's written in Isaiah chapter 48 that there is no peace, says the Lord, for the wicked. यशाया का 48 का 22 में लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। Yeah. So when the Lord is reigning supreme in our lives, then we have peace in our life. जब
परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य कर रहे हैं, तब हमें शांति मिलेगी। That's why it says in Colossians, as brother already shared, that let the peace of Christ rule in your heart. इसीलिए जैसे ब्रदर ने शेयर किया था कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में राज्य करना चाहिए। So we have to always see, we are always in the state of peace when we are with God. जब भी हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारा जीवन शांति में रहेगा। When we disobey God or when we don't do the will of God, then the peace, we lack the peace. जब हम परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करेंगे और उनकी बात को नहीं मानेंगे, तब हमारे में अशांति आ जाती है। So that is a signal for us to know that something is wrong. तो वो एक चिन्ह है जिससे हमें पता चल जाता है कि हम अशांति में रह रहे हैं। I was really encouraged some years back by this verse in Proverbs chapter 3, verse 17. Proverbs chapter 3, verse 17. नीति वचन 3:17 में जो मैंने वचन पढ़ा उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ। It says here that when we have wisdom, that means that when we have the wisdom of God, it says, her ways are pleasant ways and all her paths are peace. जब हमें प्रभु का ज्ञान हमें चलाता है तो ऐसे लिखा है 17वें वचन में, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं या शांति के हैं। So this is the will of God, that we always remain in peace. The world is looking for peace, but God, our God, the God of peace, gives us the peace, and it's such a wonderful thing that many people who are looking for peace, that God has given us this peace free of cost. दुनिया के लोग आजकल शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कितना महान बात है कि परमेश्वर ने हमें अपनी ओर से शांति दी है। And we are called to be peacemakers, as we also heard. और हमें भी प्रभु ने शांति बनाने वाले या मेल रखने वाले बनने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। Matthew chapter 5 says, "Blessed are the peacemakers." क्योंकि मत्ती के 5वें अध्याय में ऐसे कहा गया है कि धन्य है वे जो शांति बनाए रखते हैं या मेल बनाए रखते हैं। So we are not people who are quarreling and fighting, but they are ones who want to make peace. हमें झगड़ालू नहीं रहना चाहिए, लेकिन शांति बनाने वाले, मेल रखने वाले बने। We want to make peace in the family, peace in the neighborhood, peace in the church. हम अपने घर में शांति बनाए रखें, अपने पड़ोसी के साथ शांति बनाए रखें और कलीसिया में भी शांति बनाए रखें। One last verse I want to share is from Proverbs chapter 6. नीति वचन 6 में से मैं आखिर में बांटना चाहता हूँ। Verse 16. 6:16 16 to 19. 16 से 19 तक। This is a word which God spoke to me quite some years back, and I want to take it to heart till the end of my life. कुछ साल पहले प्रभु ने मुझसे उन वचनों से बात किया, तो मैं इसको अपने जीवन के अंत तक इसको अपने ध्यान में रखना चाहता हूँ। There are 6 things which the Lord hates. Yes, 7 which are an abomination to Him. 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, अर्थात घमंड से जड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, a false witness who utters lies, झूठ बोलने वाले साक्षी, and the last verse is the one which has touched me, and the one who spreads strife among brothers. और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये वचन मुझसे बात किया। See,
we can be used by the devil to spread enmity and strife among brothers. शैतान हमें उपयोग कर सकता है भाइयों के बीच में एक बैर या विद्वेष उत्पन्न करने के लिए. When we speak something negative about people, जब हम दूसरों के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, let us remember that that is the thing which God hates. तो ये ऐसी एक बात है जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं. May we never speak ill and negative things about people, but only good things. हम दूसरों के बारे में गलत नहीं बोले, सिर्फ हम अच्छी बातें बोलें. Amen. So while as we had a very powerful message from Brother Cyril today, और आज हमने भाई सिरिल से बहुत ही सामर्थ्य वचन हमने सुना है. as I was listening, one verse came to my mind, where is a place where Jesus used the word peace. और जैसे ही मैं सुन रहा था तो एक वचन मुझे स्मरण हुआ था जहाँ पर यीशु मसीह ने शांति शब्द का इस्तेमाल किया है. So this will help us to understand the gravity of the importance of the peace in our life. और यह हमारी सहायता करेगा समझने के लिए कि शांति का हमारे जीवन में कितना महत्व है और कितना मूल्य है. There was a lady who was having bleeding for 12 years. और हम उस घटना में देखते हैं कि वहाँ पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था. She came, she wanted to be healed, and she suffered very much in the hands of many doctors. और उसने चंगा होना चाहा और उसने कई सारे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया. And she came and touched Jesus, hoping to be healed. और वह आकर यीशु मसीह के कपड़ों को छू लेती है यह सोचकर कि चंगी हो जाएगी. And she got healed. और वह चंगी हो जाती है. And Jesus turned around and said her, that is in Matthew 5:34, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." और हम मत्ती अध्याय 5 के 34 में which was brother 5:34. Matthew 5. Mark 5:34. मरकुस 5 के 34 में हम पढ़ते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा. Jesus is telling her to go in peace. और यीशु मसीह उसको वहां पर कह रहे हैं शांति से चली जा. Here Jesus is contrasting peace with the 12 years of suffering she had. और यहाँ पर यीशु मसीह वह बात कर रहे हैं जो वह ताड़ना उस स्त्री ने पिछले 12 वर्ष से सही थी. 12 years of suffering is substituted by peace. That's what Jesus said. और यीशु मसीह ने उस स्त्री से यही कहा कि 12 वर्ष की उसकी जो पीड़ा और ताड़ना का जो समय था उसको यीशु मसीह ने शांति में बदल दिया. So this will help us to understand the gravity of the word, the depth of the word peace. How much peace is important in our life. और यह हमारी सहायता करेगा इस शांति शब्द की गहराई को समझने के लिए कि हमारे जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण है. This is the kind of inner peace which God can give us. और यह ऐसी शांति है जो केवल परमेश्वर है जो हमारे हृदय में हमें दे सकते हैं. And also we heard this peace is not like the world gives, but this is beyond that. This is the peace that transcends all human understanding. और हमने जैसे वचन में पढ़ा कि यह ऐसी शांति नहीं जैसे संसार से हमें मिलती कि जो लोग संसार में खोजते हैं शांति को, परंतु यह परमेश्वर की है. Don't confuse this peace with the peace which we get in the world. और आप यहाँ पर भ्रम में ना पड़ जाएं कि यह शांति जो परमेश्वर की है और वह शांति जो संसार की है. Ephesians 2:14 says, "For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility." It says, "He himself is our peace." और यहाँ पर इफिसियों अध्याय 2:14 में हम पढ़ते हैं कि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में ढा दिया. So the peace is personified as Jesus. Who is peace? Jesus himself is our peace. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि शांति का वो रूप प्रतीक कौन है? वो यीशु मसीह है. So when we are getting peace,
it's not like the world gives it. Jesus himself is coming into our life to create the peace in our life. और जब आपके हृदय में शांति को आप पाते हैं तो आप ऐसा ना सोचे कि यह वह संसार है जो आपको दे रहा है, परंतु यीशु मसीह स्वयं आपके हृदय में आकर आपके जीवन में वो कार्य कर रहे हैं और आपको वह शांति देते हैं। When you read Numbers 6th chapter, last few verses, it speaks about a blessing the Levites were supposed to give to whole Israel. और यदि आप गिनती अध्याय 6 के आखिरी के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लेवियों के लिए परमेश्वर कुछ बातें करते हैं। It says, to tell the Aaron and his sons, this is Numbers 6, 24 onwards. This is how you have to bless the Israelites. और हम गिनती की पुस्तक अध्याय 6 वचन 24 से आगे को पढ़ते तो वहां परमेश्वर हारून और उसके पुत्रों को यह आशीष देते हैं। Lord bless you and keep you. That is 24th verse. और उसका 24वां वचन, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। 25th verse, Lord make his face shine on you and be gracious to you. और 25वां वचन, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। 26th verse, the Lord turn his face toward you and give you peace. और उसका 26वां वचन, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। This is how the Levites were supposed to bless Israelites all the time. और यह इस रीति से लेवी जो गोत्र था उसे लेवी गोत्र थे और लोग इजराइल के लोगों को इस रीति से आशीष देना था। So this is how we can also bless others. Lord, the peace of the Lord be upon our brothers and sisters, because that's one of the greatest thing that can happen to our life. और हमें भी इसी रीति से आप दूसरे लोगों को इसी रीति से आशीष देना है, यह कहकर कि परमेश्वर तुम्हें शांति दे। We saw that Jesus himself is our peace. The same Jesus went into the temple and took a whip and drive out all the money changers. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं शांति का रूप शांति दाता है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मंदिर में गए थे उन्होंने रस्सी से कोड़ा बनाकर वहां पर जो लेन देन कर रहे थे उनके जो मेज थी उनको पलट दिया। So it may look like total confusion. When you look at that scene, it may be total lack of peace. और यहाँ पर आप भरमाव में भी आ सकते हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह ने यह ऐसा काम किया तो वहां पर शांति की कमी थी। But that was actually the peace. That's why it says, it's not the way the world defines peace. It's a totally different way. When Jesus drove out the money changers, he was establishing peace in the temple of God. लेकिन यही परमेश्वर की शांति है, जैसे कहते हैं कि यह संसार की रीति के अनुसार शांति नहीं है। और यीशु मसीह ने शांति में रहकर पैसों से वहां लेन देन करने वालों को सभी को मंदिर से बाहर निकाला। So in Romans 16:12 we already read that the God of peace, what is going to do? He is going to declare a war against Satan and he is going to crush Satan at our feet. That is peace. और हमने रोमियो अध्याय 16 के वचन 12 में भी पढ़ा कि शांति का परमेश्वर शैतान के विरुद्ध एक जंग छेड़ेगा और शैतान को हमारे पैरों के द्वारा कुचलवा देगा। So when God establishes peace in our life, there can be confusion sometimes. It may look like confusion, but it is God who himself is peace working in our life. तो जब परमेश्वर हमें उनकी शांति देते तो कभी कभार हम भ्रम में भी पड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो उनकी शांति हमें देते हैं और हमारे जीवन में कार्य करते हैं। Pray that God will give his peace to us and fill our hearts with his peace. Amen. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनकी शांति हमारे हृदय में दे और हमारे जीवन में कार्य करे। आमीन। John chapter 14 verse 27. और हमने योना अध्याय 14 वचन 27 में पढ़ा। There is a difference between the peace that the world gives and the peace that Jesus gives. और यहाँ पर एक अंतर है उस शांति में जो संसार देता है और वह शांति जो यीशु मसीह हमें देते हैं। Say in the world, say for example, when you get lots of money or person gets promotion, children become first in the class, or some get high grade, person has got lots of peace.
और हम जैसे संसार में देखते हैं कि हमारे काम के क्षेत्र में हमें उन्नति हो जाती है या पैसों के क्षेत्र में हम ज्यादा उन्नति पाते हैं, स्कूल में हमारे बच्चे बहुत अच्छे क्रमांक से नंबरों से पास भी होते हैं, तो हम सोचते हैं हाँ हमारे पास शांति है। But when a person comes to very bad circumstance, maybe humiliation, maybe loss of job, loss of money, some pickpocketing or something like that, and if all the peace goes, that means, yeah, that is a testimony of a worldly person. Good situation, peace is there. Bad situation, no peace. और इसी के उल्टा यदि हम दूसरी परिस्थिति में देखें कि उस व्यक्ति का नौकरी जा चुका है, उसके पास काम नहीं है और उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है, पैसों में नुकसान हुआ है या किसी ने उसका पॉकेट मार के चुरा लिया है, तो उसके मन में शांति नहीं रहती। एक संसारिक रीति पर जीने वाले व्यक्ति की यही गवाही होती है, जब परिस्थितियां अच्छी है तो उसके पास शांति है, परिस्थितियां बुरी हो जाती है उसके पास शांति नहीं है। But we read in 2 Thessalonians chapter 3:16 that what is the mark of the peace the Lord gives. We can see now, may the Lord of peace himself continually grant you peace in every circumstance. So in every circumstance, there is a peace that God gives. That is the mark of the peace of God. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 16 में, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे, तुम सब प्रभु तुम सबके साथ रहे। और यही हमारी गवाही होती है कि परमेश्वर की शांति परमेश्वर हमारे हृदय में देते हैं। So when the peace goes away from our heart in some situation, we have to recognize, Lord, that is the peace of the world. I don't want that. I want the peace that you give. और कई बार परिस्थितियों के बीच में जब हमारे हृदय में शांति नहीं रहती है, तब हम परमेश्वर से कहने पाए कि परमेश्वर मेरे पास संसार की शांति थी जो जा चुकी है, लेकिन मैं आपकी शांति को चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शांति दे। Good that Lord, you have revealed to me that what peace I've got is a peace that world gives. I don't want that peace. I want the peace that you give. Put your microphone close. Hello? या और हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पे प्रकट किया कि मेरे पास जो शांति थी वह संसार की थी जो जा चुकी, लेकिन आप मेरी सहायता करें कि आप अपनी शांति मुझे दे। Because Jesus here, he's just hours away from crucifixion. He knows what is going to happen. He's going to be crucified. The whole world is going to reject. But Jesus is telling, I've got such a lot of peace that I can give it to you now. और हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, कुछ घंटे ही बचे थे उसके पहले, और वो खुद कहते हैं अपने शिष्यों से कि मेरे पास परमेश्वर की बहुत ऐसे शांति है और उसमें से मैं अपनी शांति में से तुम्हें मैं देता हूँ। We know about Paul, what the verse that we read from Philippians chapter 4, that Paul is telling about rejoice always, about peace of God that passeth all understanding. All these are prison letters. He was in prison, and maybe after 1 year he is going to be beheaded, and he was in such terrible situation, and he's telling in the midst of it is lots of peace. और हम फिलिपियों में भी वचन में प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ते हैं कि जब वह जेल में थे उस समय उन्होंने यह पत्रियों को लिखा, और वहां पर वह बार बार कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और वो जानते थे कि अगले क्षण उनका शायद सर भी गला भी काटा जा सकता है, लेकिन फिर भी वहां पर वो शांति में थे। We know about Paul and Silas. They were in prison and they were singing songs. They were all imprisoned. Their hands cannot move, legs cannot move, but they were singing with joy. और हम प्रेरित पौलुस और सिलास के विषय में पढ़ते हैं कि वो जेल में बंद थे, उनके हाथ पांव बेड़ियों में बांधे गए थे, हाथ पांव बिना हिला नहीं पा रहे थे, फिर भी वो वहां पर परमेश्वर के भजन का स्तुति और महिमा का कर रहे थे। So that is the mark of peace of God. It's peace in every situation, which only Holy Spirit can give. और यह एक चिन्ह है परमेश्वर की शांति का कि परमेश्वर की वह शांति जो केवल पवित्र आत्मा ही हमें दे सकती है। I want to how can we have that peace in every situation? I want to just share 2-3 things. और 2-3 बातें मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि कैसे यह परमेश्वर की शांति हर एक परिस्थिति में हमारे हृदय में हम पा सकते हैं। We read in John chapter 16:33, in me you may have peace, in the world you have tribulation. और हम यूहन्ना अध्याय 16 वचन
verse 33, 33, 16. Yeah. यूहन्ना In the 16 middle, के you read from middle. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So, in chapter 15 of John, he's telling about to abide in me. That means just like a branch remains in a tree. So, when we are remaining as a branch in a tree, as we are connected to Jesus, what is written, we'll have peace. और जैसे हम यूहन्ना के अध्याय 15 में पढ़ते तो यीशु मसीह वहां पर दाखलता और डालियों के विषय में बात करते हैं कि तुम डालियों के समान हो और मैं दाखलता हूँ। यदि हम डालियों के समान यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिलेगी। Even though there are so many tribulations, maybe say for think of this corona time, if we are connected to Jesus, whatever be the situation, we'll have peace. और चाहे कैसी भी हमारे जीवन में परिस्थिति है, जैसे आज का हमारा समय कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो यदि हम हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति है तो हम इसके बीच में शांति में रहेंगे। Okay, secondly, we can see in Philippians chapter 4, that verse that we read, we can read the previous verse, which is 6. The opposite of peace is written. Anxiety is opposite of peace. So Jesus said, Paul is telling here, be anxious for nothing, but in everything, prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. और शांति का हमेशा विपरीत और उल्टा होता है चिंता करना और भय खाना, चिंता करना। और हम फिलिपियों अध्याय 4 के वचन 6 में पढ़ते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। So, see, anxiety is going to come to us as long as we live on the earth. और चिंताएं और चिंताओं के विषय हमारे पास तब तक आते रहेंगे जब तक हम इस धरती पर जीवित रहेंगे। But Bible says what we have to do in the midst of it, with prayer and supplication, means specific request with thanksgiving, because the Lord has heard the prayer and he has answered the prayer. We have to make our requests made known unto God. That means the thing we are anxious of, present it to God, pass it on to Jesus. Don't carry that weight on your head, just pass it on to Jesus Christ. और जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि चिंता के विषय हमारे पास आते हैं, तो वचन में हम पढ़ते हैं कि यह जो चिंता का विषय है, प्रार्थना और निवेदन के साथ में परमेश्वर के सामने धन्यवाद करके हम लेकर जाएं। हम अपने पास इस बोझ को हमारे सर पे ना उठाएं, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद के साथ दें। धन्यवाद इसलिए कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसने उत्तर भी दिया है। So when we do that, it's written, peace of God, which surpasses all comprehension or understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. और वही आगे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। So that is a military word, sentry. Holy Spirit will be a sentry in our heart, which is guarding the thoughts and different things that comes to our heart. और परमेश्वर यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि सुरक्षित रखने वाला तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदय में आएगी और वह चौकसी करेगी कि हमारा हृदय सुरक्षित रहे और शांति में रहे। Just like maybe a watchman or maybe a military person guarding our gate, who all are coming inside. So you know that it's when the wrong thoughts come that anxiety comes, and Holy Spirit says, don't allow these thoughts. I don't want you to allow such thoughts into your heart. और जैसे कि उदाहरण के लिए कोई सैनिक होता है या कोई पहरेदार होता है जो पहरा देते रहता है, तो हमारे हृदय में जैसे ही कोई बुरे विचार, हमारे विचारों में कोई गंदे बुरे विचार आते हैं, हम उन विचारों के कारण चिंताएं करने लग जाते हैं। और तब पवित्र आत्मा कहते हैं कि तुम इस विचार को अपने हृदय से, मन से बाहर निकालो, इसे दूर करो। Or maybe Holy Spirit say, don't read reports that create fear in your heart. We can listen to the voice of the Holy Spirit, and Holy Spirit will be a guard, will be a sentry which is guarding our heart, so that peace will be there in our heart all the time. अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए पहरेदार के समान कार्य करता है, जो हमारे हृदय को बुरे विचारों से बचाकर सुरक्षित रखता है। Lastly, in Isaiah 52:7 says, और आखिर में यशायाह अध्याय 52 का वचन 7वां कहता है, it's written about
how lovely in the mountains are the feet of those who bring good news, who announce peace. And what is the good news? The good news is, verse 7 is written, your God reigns. और यहाँ पर हम वचन 7 में पढ़ते हैं कि पहाड़ों पर उसके पाँव क्या है, सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। और शुभ समाचार क्या है, सुसमाचार क्या है? वह है जो शांति की बातें सुनाता है। So that means there are situations where maybe in our personal life, in our family life, many things can happen. Say maybe disease, maybe some problem, maybe injury, maybe different things can happen. But in the midst of all that, what is the good news I have to remember all the time? It's written, announced to Zion. Zion means God's people, to each of us. Your God reigns. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते कि चाहे कैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आए या हम संकट परेशानियों के बीच में हो, हमारे लिए एक सुसमाचार है जिसे हमें हमेशा याद रखना है और हमेशा इससे स्मरण करना है कि परमेश्वर सियोन से कहता है, मतलब उसके कलीसिया से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। So may God help us so that we can have that peace in our heart all the time. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हर समय हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति रहे। के लिए और जैसे हमने सुना शांति के बारे में, जब मैं मसीह के अंदर जब नया आया था तो मैं एक शांति को ढूंढ रहा था। बट जब मैंने परमेश्वर के अंदर आकर पश्चाताप किया, मन फिराया और जब यीशु को ग्रहण किया तो मैंने देखा वो शांति जो संसार नहीं दे सकता था, वो शांति मेरे अंदर आया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, जिस तरह वचन में हमने सुना भी, यूहन्ना 14:27 में लिखा है कि तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह संसार के अंदर तुमको शांति मिलता है, काफी सारी चीज हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर। हो सकता है हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हमको लगता है बहुत खुशी है, कोई लोग खाने के अंदर एंजॉय करते हैं तो उनको लगता है ये शांति है, अच्छा खाना मिला, काफी सारी चीज हम देखते हैं कि संसार के अंदर शांति फील करते हैं। बट लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि मैं वैसा शांति नहीं देना चाहता हूँ। तो कौन सा, किस तरह से शांति वो देना चाहता है, मतलब कौन सा शांति वो देना चाहता है? अगर हम इसका जवाब देखेंगे, रोमन्स में लिखा है, रोमन्स 14 में लिखा है कि 17 में परमेश्वर का राज खाने पीने का नहीं है परंतु दर्द और मिलाप और आनंद का है। इंग्लिश में और अच्छे से लिखा है, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइचियसनेस एंड पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमको स्वर्ग का आनंद, जिस तरह परमेश्वर आनंद से भरा है, स्वर्ग में आनंद से भरा है, वो आनंद, स्वर्ग का आनंद, द किंगडम ऑफ हेवन, वो आनंद हमको परमेश्वर पर हृदय में देना चाहता है। ये अगर आप मोजेस को पूछोगे, अगर अब्राहम को पूछोगे, ये आनंद वो लोग ने अनुभव नहीं किया है उस टाइम पे। जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको देना चाहता है, वो आनंद हमको परमेश्वर स्वर्ग का चीज देना चाहता है। अगर आप मोजेस को पूछोगे, मोजेस आपने ये अनुभव किया है? मोजेस बोलेगा नहीं, मैंने ये अनुभव नहीं किया है। तो ये हम बहुत ही प्रिविलेज है, ऐसा पीस, वो आनंद हमको आनंद करने, हमको वो पीस हमारे अंदर हमको अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। और मेरे प्रिय भाइयों, और हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ, कोई भी हमको लगता है कि हम कोई भी पाप या कोई भी सिन है, जैसे हमने सुना ब्रदर सैम से अभी, हम उसको इमीडिएटली रिपेंट करो और परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप है कंटिन्यू बनाए रखो। तो हम देखते हैं कि, और परमेश्वर यहाँ पर आगे बता रहा है कि अगर तुम्हारे जो सच्चा पीस है, कभी कभी हमको लगता है संसार में काफी सारे लोग पैसे के अंदर सब, उनको लगता है सब पीस है, सब कुछ ठीक है। इवन हम भी ऐसा सोच सकते हैं, एक विश्वासी भाई भी ऐसा सोच सकते हैं। बट इसका प्रूफ क्या है कि हम परमेश्वर का आनंद है, जो परमेश्वर ने स्वर्ग का आनंद दिया है, या संसार का आनंद है? प्रूफ ये है कि आगे वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 में यीशु मसीह वही बता रहा है कि 27 में आगे कंटिन्यू लिखा है कि जैसे संसार तुम्हें पीस शांति देता है, वैसा मैं नहीं देता हूँ। लिखा है कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जब परमेश्वर का शांति तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारा मन डरेगा नहीं, तुम्हारा मन ना ही घबराएगा, ना ही चिंतित होएगा।
हम देखेंगे परमेश्वर का जैसे हमने रोमियो 16 में पढ़ा कि परमेश्वर का शांति जो शैतान को हमारे पैरों तले कुचल देता है, तो वैसा वो काम हमारे जीवन में करेगा। वो सच्चा शांति है। जब हम परमेश्वर का जो राज्य का जो शांति है वो हमारे जीवन में एक शैतान के ऊपर और तकलीफ के ऊपर, हमारा मुसीबत है, प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम होने को हमको ताकत देगा। ना कि हम डिफीट होएंगे, ना ही ग्रम्बलिंग करेंगे, ना ही हमको कोई चिड़चिड़ाहट होएगा, ना ही गुस्सा होएगा। लेकिन परमेश्वर का जो शांति हमको एक परमेश्वर के राज में लेके जाएगा। और हम देखते कि परमेश्वर के अंदर हम वो आनंद मैंने महसूस किया। संसार में काफी सारी चीज हम सभी ने पाप के अंदर एंजॉय किया है, संसार में एंजॉय किया है, बट ये पीस जो मैंने देखा कि परमेश्वर जो शांति हमको देता है वो दुनिया नहीं देती। हेलो हेलो ब्रदर, सुनाई दे रहा है? हाँ ब्रदर्स, आवाज आ रहा है? यस यस। अरे अरे ओके ओके, प्रेज गॉड। तो आज बहुत सामर्थ्य वचन प्रभु ने हमसे बात किया है। मुझे एक दो वचन बांटना चाहता हूँ जो मेरा दिल में प्रोत्साहन दिया शांति के बारे में। जैसा हम सुना कि ब्रदर सिरिल से, आइज़ाया 9:6 में लिखा है कि परमेश्वर जो है शांति का कर्ता है। यानी इसका मतलब है कि परमेश्वर खुद के अंदर शांति है, यानी वो कोई भी चीज का चिंता नहीं करता है। प्रभु, अगर हम चिंता करते हैं इसका मतलब है हम हमारे अंदर कुछ शांति नहीं है। तो बाइबल कहते हैं कि आइज़ाया 9:6 में परमेश्वर, पहले मैं एक भाई से पूछा कि अगर आपके पास कोई भी आके कुछ मांगे, आप कब दे सकते हैं? आपके पास जो चीज है उसको कब दे सकते हैं? उसने बोला कि जब मेरे पास रहेगा तब मैं किसी और को उधार दे सकता हूँ। अगर मेरे पास वो चीज नहीं है, वो चीज मैं दूसरों को जो मांग रहे हैं उसको नहीं दे सकता। उसी तरह है शांति, ऐसा है कि किसी और से हमें मिलना है। तो बाइबल कहते हैं कि शांति का जो कर्ता कौन है? परमेश्वर है, और वो शांति हमें देना चाहता है। 9:6 में लिखा है कि ऐसे में वो शांति हमें देना चाहता है, अपने बच्चों को देना। उस भाई से पूछा कि अगर आपके पास वो पीस नहीं है, हम दूसरों को नहीं दे सकते। उसी तरह तो प्रभु का वचन बहुत प्रोत्साहन करते हैं कि परमेश्वर का शांति हमें देना चाहते हैं। और एक वचन मैं आपको बांटना चाहता हूँ, फिलिपियों का किताब, फिलिपियों का किताब 4 और 7वां वचन, फिलिपियंस 4:7। वहां पर लिखा है कि जो कुछ आपने मेरे से सीखा, यानी जो कुछ आपने मुझसे पाया, यानी जो कुछ आप मुझसे सुना, और जो कुछ आप मेरे से देखा, वो सारे चीज आचरण में रखो, तब परमेश्वर जो शांति का दाता है आपके साथ रहेगा। यहाँ पर एक चीज मुझे सीखने को मिला कि हम कई बार उपदेश सुनते हैं, कई बार प्रभु का चमत्कार पाते हैं, कुछ आशीष पाते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि सारी चीज जो है भूलना नहीं, हमको आचरण में रखना है, कार्य में रखना है। जब ये चीज हम रखेंगे, परमेश्वर जो शांति का दाता है वो हमारे साथ रहेगा। कितना जरूरी है हर एक मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर की शांति हमारे साथ रहना। हर एक वचन में लिखा है कि मेरी शांति तुम्हारी बच्चों के साथ बढ़ते जाएगा, यानी परिस्थिति भी मुश्किल होते जाएगा, लेकिन परमेश्वर की जो शांति है हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ पीढ़ी पीढ़ी से बढ़ते रहेगी। ये वादा है, हमारे परमेश्वर की एक वादा है कि उसकी शांति हमें देना चाहता है, और वो शांति हर एक मुश्किल में बढ़ते जाएगा जब ये हम विश्वास में जीते रहेंगे। तो मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है शांति का करता है। हमको शांति चाहिए, सिर्फ प्रभु के पास जाना, और किसी के पास नहीं जा सकते हैं, किसी के पास शांति नहीं। जैसे कि जॉन चैप्टर में लिखा है कि दुनिया जो शांति है वो थोड़ा समय के लिए है। दुनिया में भी शांति है लेकिन थोड़े ही समय के लिए है। जब वो चीज मिल गया वो शांति वापस खो जाएंगे, जब वो ब्लेसिंग मिल गया वापस हम अशांति में जाएंगे। लेकिन प्रभु जो शांति देता है वो दुनियादारी जैसा शांति नहीं, वो हमेशा के लिए। मुश्किलों में शांति, कठिनाइयों में शांति, तूफानों में शांति, और
कठिन कठिन परिस्थितियों में भी हम शांति को महसूस करेंगे। ये चीज हम यीशु को जीवन में देख सकते हैं कि जब वो नाव पे जा रहा था, चेले लोग अशांति महसूस कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह एक शांति से वहां पर आराम से सो रहा था। कई उदाहरण हम बाइबल के द्वारा, यीशु के लाइफ के द्वारा सीख सकते हैं कि हर एक परिस्थिति में शांति में कैसे जी सकते हैं। हमेशा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना, मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर हमारा आधारित रहना, विश्वास में जीना, और जो कुछ सुना हमने, जो कुछ प्रभु से देखा, ये सब हम आचरण में रखेंगे तो प्रभु का शांति हमारे जीवन में बने रहेगी। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो जो वचन हमने सुना आज। और परमेश्वर जब स्वर्ग में जाने से पहले हमें एक चीज जो देकर गया है, वो बाइबल कहती है वो शांति है। परमेश्वर हमें शांति देकर स्वर्ग में चले गया। उसको पता था जब वो संसार में था एक चीज की बहुत जरूरत है, वो एक शांति थी, और इसलिए यीशु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम सचमुच परमेश्वर के शांति में बने हैं या परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है? तो यूहन्ना अध्याय 14 का 27 वचन में हमने देखा, यीशु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, लेकिन उसके आगे वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न तुम डरे। अगर हमारा मन व्याकुल होता है, अगर हमारे मन में चिंताएं आती रहती है, क्या होगा अभी, कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे आगे, हम क्या, बाइबल कहता है मत्ती अध्याय 6 में हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अन्य जाति ये बात की चिंता में लगी रहती है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू ये बात की चिंता मत करना। तो सबसे पहला बात ये बताता है हमारा मन हर बात में जब व्याकुल होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है। यूहन्ना अध्याय 14 का 1 में हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। जब भी हमारे अंदर एंजाइटी आती है, जब भी हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं कैसे होगा, क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, क्या ये बीमारी हमको आएगी, क्या ये, बहुत सारे विचारे हैं जो संसार में रहने पर हमें आता है। ऐसा नहीं कि हमें चिंताएं नहीं आएगी, यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हें कभी चिंता नहीं आएगी। वो कहता है जब चिंता आएगी तब क्या करना है, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है, तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जब हम परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जैसा आपने फिलिपी अध्याय 4-6 में भी पढ़ा, जब हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का जो शांति है हमारे मन में वापस से आती है और राज्य करती है। और दूसरा वहां पर लिखा है कि तुम न डरो। डर का संबंध किससे होता है? पाप से। बाइबल कहती है जेनेसिस चैप्टर, उत्पत्ति अध्याय 3 में जब परमेश्वर आदम से मिलने आया और परमेश्वर आदम से बातें करने लगा और उससे पूछा तू कहाँ है, तब आदम ने क्या जवाब दिया कि प्रभु मुझे तुझसे डर लग रहा है क्योंकि मैं नंगा हूं। ये हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं, हमारे जीवन का नंगापन हमारे सामने आता है, तब हमें परमेश्वर से डर लगने लगता है और हम परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है, जैसे 1 जॉन 1:9 में लिखा है, जब हमसे पाप होता है तो वी हैव टू कन्फेस इट और तुरंत परमेश्वर के साथ फिर से वो फेलोशिप में आना बहुत जरूरी है। तो उससे हमारा शांति हमें वापस से मिलता है। तो ये दो चीज से हम खुद को परख सकते हैं। अगर हमारा मन हमेशा व्याकुल रहता है और हमारे अंदर कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, दूसरे का आशीषों को देखकर हम कहते हैं हमारा जीवन ऐसा क्यों है, प्रभु अभी तक हमको क्यों नहीं उठाया, हम कंप्लेन करते रहते हैं, मन व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव पीस। अगर हम बोलते भी है यीशु के शांति के बारे में, बट मन ही मन हमारा मन व्याकुल रहता है। भजन संहिता 51 में लिखा है, जब दाऊद ने पाप किया, वो कहता है परमेश्वर आपने मेरे हृदय की हड्डी तोड़ दी है, इसीलिए वापस से मुझे अपना हर्ष दे दे, वो पवित्र आत्मा का उद्धार में फिर से दे दे। तो ये दो चीज है, मन का व्याकुल होना और दूसरा है पाप से डर में जीना। ये दो चीज है जो हमें परमेश्वर की शांति से अलग कर सकता है। तो हमें बहुत जरूरी है, जब भी हमारा मन व्याकुल हो या जब हमारे अंदर भय आए किसी चीज का, सबसे पहला चीज करना है प्रभु के पास जाना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु ऐसा ऐसा मेरे जीवन में बातें हैं, आप मुझे सहायता करें। और बाइबल कहता है तब परमेश्वर की शांति फिर एक बार हमें प्राप्त होगी। देखो बाइबल कहता है चोर इसलिए आया है वो चोरी करे। उसको क्या चोरी करना है हमारे जीवन में?
उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो चाहता है कि हमारी शांति को चोरी करे। जो यीशु मसीह हमें देकर गया है, वो एक ही चीज उसको चाहिए, वो शांति को आपसे ले लेगा, आपका विश्वास ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, आपके अंदर वापस से वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आएगा, फिर से आपका फेथ गिरते जाएगा। तो बहुत जरूरी है हमें शांति में बने रहना। और शांति में कैसे बने रहेंगे? जैसे हम यूहन्ना अध्याय 16 के 33 वचन में देखते हैं, इन मी यू कैन फाइंड पीस, यीशु में ही हमें शांति है। अगर हम यीशु में बने रहेंगे तो सचमुच ये शांति में हम बने रहेंगे। तो प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे, आमीन। Just as we heard from Philippians 4 and verse 9, where it says, things which you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace shall be with you. तो जैसे हमने फिलिपियों के 4 अध्याय के 9वें वचन से हमने सुना कि जैसे मैंने तुम्हारे 1 मिनट सिस्टर 4:9 नो या 1 मिनट। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। So I was just thinking how opportunities come into our life, situations come where we are, we can become anxious, but the Lord says that put into practice the things you have learned and received. तो मैं सोच रही थी कि कैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आ सकती हैं जब हम ऐसे मोड पर होते हैं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता पड़ती है, मगर परमेश्वर हमसे कहता है कि जो भी बातें तुमने सुनी है उनको ग्रहण करो और उनको पालन करो, तब तुम्हारे पास शांति का जो श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। We have to hear what God has to say to us. और हमें वो बात सुननी है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, not what the world tells us or what we hear Satan speaking to us or sometimes people speaking to us. और वो नहीं जो संसार या फिर शैतान या तो इस संसार के लोग हमसे बोलते हैं। I was just thinking of in my own life this all this while Ruth, our second daughter, was with us. तो ये सब बातें मैं मेरे जीवन से देख रही थी कि जैसे मेरी जो दूसरी पुत्री है रूथ, वह हमारे साथ है अभी। She works in Pune. वह पुणे में वैसे काम करती है। But she got a call saying that she has to report to work. लेकिन उसको एक कॉल आया कि उसको वापस अपने काम वाली जगह पर जाना है। So after hearing that, I was so troubled in my heart. और वह सुन के मैं मेरे हृदय में बहुत हिल गई थी। Because here she is safe from this corona. क्योंकि यहाँ पे वह सुरक्षित है इस कोरोना से। There, when she goes there, she'll have to go out to buy things. She'll have to do everything on her own. और वहाँ पे जब वह जाएगी तो उसको सारा काम खुद से करना पड़ेगा और चीजों को खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। So then I was reminded of this verse. और तब मुझे यह वचन याद आया, which we heard, that be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. यह वचन की किसी भी बात में चिंता मत करो, मगर हर एक बात में धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को परमेश्वर को के सामने प्रस्तुत करो। So I can either listen to that voice or listen to my own voice. तो या तो मैं इस आवाज को सुन सकती हूँ या तो मैं खुद की आवाज को सुन सकती हूँ। Proverbs 1:33 it says, भजन संहिता प्रोवर्ब्स नीति वचन 1:33 का वचन कहता है, but he who listens to me shall live securely. कि जो मेरे ऊपर कान लगाएगा वह सुरक्षित रीति से जीवन बिताएगा। Shall be at ease from the dread of evil. और वह हमेशा 133 वह हमेशा आराम के स्थान पर रहेगा। So if we listen to the Lord's voice, तो अगर हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनेंगे, we will have peace. तब हमारे अंदर शांति रहेगी।
I thank God for the word that I heard. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो भी हमने आज सुना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहे हैं। This last week, I got a call from embassy on Tuesday saying that, are you ready to travel? Tomorrow is your flight. तो इस पिछले सप्ताह में मंगलवार के दिन पे मुझे एक कॉल आया एम्बेसी से और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम तैयार हो ट्रैवल करने के लिए, क्या हम आपकी फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। So I told them that I am here in quarantine center and I'm waiting for my COVID test reports to come out. तो मैंने उनको बता दिया कि मैं यहाँ पे क्वारंटाइन की जगह पर हूँ और मैं मेरी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ। So then they just I mean they say okay then there's no hope, I mean you can't travel otherwise. So yeah. तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ अभी आपके पास कुछ आशा नहीं है और अभी आपके सफर नहीं कर सकते। And the next day, that was on 10th of June, I received my corona test and all of us are COVID negative. और उसके अगले दिन 10 तारीख को हम लोगों को हमारा जो कोरोना का टेस्ट था उसका नतीजा आया और हम सभी लोग उसमें नेगेटिव पाए गए। I praise God for that because that was very important step to be free from here. I mean, then only the further procedures could take place. तो मैं परमेश्वर का उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वह एक पहला स्टेप था कि मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं और मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊं। So the next thing, that same evening on 10th, we called our agent and we asked what is happening for our flights. तो उसके अगले दिन ही हमने अपने एजेंट को बुलाकर पूछा, कॉल कर पूछा कि हमारी फ्लाइट्स का क्या अभी स्थिति है। So he said that okay, we are checking for flights for you and we will let you know. तो उसने बताया कि हाँ हम लोग आपके लिए फ्लाइट्स को ढूंढ रहे हैं और हम आपको आगे बताएंगे। And then same thing what happened that I requested my company that there are certain flights which is arranged by embassy, so can we be in that, so can you check for that. तो उसी दिन हमारी कंपनी ने हमें बताया कि कुछ फ्लाइट्स हैं जो एम्बेसी के द्वारा ही नियुक्त की गई हैं, तो क्या आप उसमें जा सकते हैं। ब्रदर, इट इज राइट व्हाट आई सेड? Yes. Basically, I told them that embassy have some flights which they were not aware about it. Which your company was not aware? Yeah, correct. तो मैंने मेरी कंपनी को बताया कि कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जो एम्बेसी भी जिसका अरेंजमेंट करती है और उनको शायद इस बारे में नहीं पता था। So I requested them, can we contact the embassy or are you going to contact? So eventually they said okay, we are trying to get in touch with embassy and we will let you know. तो मैंने उनको पूछा कि क्या हम खुद से एम्बेसी को संपर्क करें या हमारी जो कंपनी है वह खुद से करेगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग खुद अभी उस एम्बेसी को संपर्क करेंगे। So eventually when my agent contacted this embassy, they said that we cannot entertain any other agent, they have their own process to go through. तो इसी के साथ साथ जैसे हमारा जो एजेंट था वह हमसे बोलने लगा कि हम लोग किसी और दूसरी एजेंसी से इस बारे में संपर्क नहीं कर सकते, हमें हमारे तरीके से चलना पड़ेगा। So I eventually called my company and then I asked them that now since you are not able to arrange the flight for us, can we directly get in touch with embassy and we request, because we are getting the call from embassy. तो फिर मैंने मेरी कंपनी को कॉल करके यह पूछा कि जैसे कि वो लोग अभी हमारे लिए फ्लाइट्स को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम खुद से एम्बेसी से संपर्क करके अपने लिए फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं, बुक के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां से कॉल आ रहे हैं। So for that also my company, they made us wait for almost 1 day and then eventually they said okay, you can do it if you are getting a flight, then we have no problem. तो इस बात के लिए भी हमारी जो कंपनी है उसने हमें 1 दिन तक इंतजार कराया, फिर बाद में हमें जवाब दिया कि ठीक है, आप यह बात उनसे कर सकते हैं और अगर फ्लाइट्स अवेलेबल हैं तो हम बुकिंग की ओर जा सकते हैं। So then next day on 11th evening, we are total 8 Indians, we wrote an email to the embassy asking that we are ready to travel now and can you include us in one of the rescue flights.
तो उसके अगले दिन 11 तारीख को हम 8 लोग यहाँ पे हैं। हमने एक ईमेल लिखा हमारे एम्बेसी को कि हम लोग जाना चाहते हैं और आप हमारे लिए क्या फ्लाइट्स के लिए देख सकते हैं। And you won't believe one of our crew members, he already received a call, and then further I was communicating to them and also communicating to my company because payment had to be made. So my company eventually made a payment. तो ये बहुत अचंभे की बात है कि हमारे एक क्रू हमारा जो क्रू है मेंबर है उनमें से एक पर्सन का बुकिंग भी हो गया, और फिर मैंने अपनी कंपनी से संपर्क करके पूछा कि क्या वह पैसे का इंतजाम और जो भी पेमेंट करना है वह कर सकते हैं। Yes, and then finally there are others. Out of 8, there are 4 people from Delhi. They are also getting the same flight. They are getting the flight for 20th of June. So one person already left today. His flight is tomorrow for India. तो और बाकी के कुछ 4 लोग हमारे क्रू में हैं जो दिल्ली से हैं, उनको भी अभी 20 तारीख की फ्लाइट मिल गई है। और जो एक इंसान को पहले मिली थी वह अभी निकल भी गया है यहाँ से आज सुबह। So in midst of all this, I just want to share that I mean at that point of time I was quite feeling discouraged or sad that there was only one single flight to Mumbai which was on 10th, which I even missed it because my test results were not out. तो मैं आप सबसे ये बात बांटना चाहता हूँ कि यह सारी बातें जब घटना हो रही थी और जब भी मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि 10 तारीख को जो एक ही फ्लाइट थी मुंबई के लिए वह मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरा टेस्ट का रिजल्ट नहीं हुआ था। But in midst of all this also, God has been working in my life, and because if I wouldn't be here, probably the others would not approach the company because I'm in this position to talk to company and do certain things. So God used my position, God used my rank, and God used my basically God gave me wisdom at that point of time to be in touch with all these to do the follow-up, and at least others could go. तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर जिस पोजीशन पे मैं हूँ अगर मैं नहीं होता था और तो ये सब जो संपर्क मैंने कंपनी से किया है और उनसे बातचीत की है, तो परमेश्वर ने मेरा जो पोजीशन है उसका इस्तेमाल किया ताकि दूसरे लोग भी इस जगह से आजाद होकर जा पाए। So God has been so faithful, and I've been enjoying God's peace, and I really praise God because God could have easily given me that flight, but then there's a reason, and I'm enjoying that peace, and I'm happy that God is using me here, and I'm encouraging others also, those who are Indians, that to speak faith, to speak that they will definitely will be back home, and that is what we see it's happening. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आसानी से मुंबई वाली फ्लाइट भी मिल सकती थी, मगर परमेश्वर ने यह जो डिले हुआ है, ये परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि मैं दूसरे लोगों को और प्रोत्साहित कर सकूं और उनके बिहाफ में मैं कंपनी से बात कर सकूं। तो और परमेश्वर ने अपनी शांति मुझे दी है इन सारी समस्याओं के बाद भी। Yes, and I want to thank all the brothers and sisters also. They have been praying for me since last 3 months, and at every step. और मैं सारे भाई बहनों का भी धन्यवाद। And I believe that definitely for me also God will arrange a flight. मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए जो मेरे लिए लगातार 3 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए भी एक फ्लाइट का इंतजाम करेंगे। So thank God, praise God. तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो।